Hi everyone, I Shrujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 9 lines and angles, and we are going to continue with the workout portion, and today's part is part 7. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 6, I have shared the link at the end of the video, so do watch those parts and then you watch this one. So what will happen, the concept will be much more clear and it will be helpful for you to solve the sums more easily. So let's start. Today we will solve question number 4 from workout section. In our previous class we did till question number 3. Now question number 4. Now 4 has two parts. Part A, again part B is there. So let us do part A. 4A. Find the values of x, y and z. You have to find out the values of x, value of y and value of z, or some students used to say z, okay, in each of the following figures. So here is the figure and you have to find out this x is how much, this y is how much and this z or z is how much. So let us find out. If you see two lines are intersecting, then four angles are formed, and if you see nicely, this angle and this x angle, they are vertically opposite. So we are getting, okay, so how we will start the answer, okay, for A. So can I write x equal to 55 degree directly, and we can say since vertically opposite angles equal. Clear? What is the reason? Vertically opposite angles are equal. Okay. Why? Because AB and CD, they are intersecting each other. Now the next one, again, if I write again. Now if you see nicely, this angle Y and 55 degree, angle Y and 55 degree, if I make a line like this way, okay. So if I make with a black pen like this one and this one. So it is looking like a protector. So can I say that angle Y plus 55 degree equal to 180 degree? Okay, that means Y angle and this 55 degree together, ये Y angle और 55 डिग्री दोनों मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री? रीजन क्या है? रीजन भी लिखना पड़ेगा. सिंस AB is a straight line, ST line. Okay, AB is a straight line हम लोग लिख सकते हैं. देखो स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन. सो AB इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल का क्या होता है? 180 डिग्री होता है. और तुम लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि ये कैसा, इट इज लुकिंग लाइक हाउ, लाइक अ प्रोटेक्टर. सो प्रोटेक्टर इफ इट इज लुकिंग देन व्हाट? प्रोटेक्टर हैज हाउ मच डिग्री? 180 डिग्री. तुम ये दोनों, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर 180 डिग्री लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है. तो मैं इधर में स्ट्रेट लाइन लिया. अभी y इक्वल टू, सो 180 डिग्री, ये 55 उधर जाने से माइनस 55 डिग्री. तो कितना हो गया? y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 5 2 और ये 125 डिग्री आ गया हम लोग का आंसर. ठीक है, y मिल गया 125 डिग्री. अगर y 125 डिग्री है और y और z और z, y और z ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आ जाएगा. नाउ z इज इक्वल टू y. वाई? बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? भट, मैंने तुम लोगों को सिखाया है, भट ऑफ एंगल्स इक्वल. ठीक है, ऐसा करके शॉर्ट में लिखेंगे. सो z इक्वल टू y कितना है? 125 डिग्री. तो आ गया. ठीक है, ये भी 125 डिग्री. अभी तीनों आंसर हम लोग एक साथ लिखेंगे. एक साथ कैसे लिखेंगे? हेंस x इक्वल टू, x कितना है इधर में? 55 डिग्री. ठीक है, और y कितना है? 125 डिग्री. ठीक है, और z कितना है? z भी 125 डिग्री.
और ये आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4B। 4B का क्या दिया हुआ है? इधर में देखो, ये डायग्राम है और यहां से हमको x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस तुम लोग अच्छे से अगर देखोगे, ये एंगल 40 डिग्री और x और ये 25 डिग्री, ये तीनों को एक साथ जोड़ने से, अगर मैं जोड़ूंगा ये तीनों को, ठीक है, तो देखो एक तो प्रोटेक्टर जैसा हो गया, मतलब ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको 40 डिग्री, एक तो है 40 डिग्री प्लस एक तो कितना है x है, प्लस और तीसरा कितना है 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे AOB। AOB इज ए ST लाइन। ST लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर तुम लोग बोलोगे सर 40 डिग्री डायरेक्टली आप लिख रहे हैं, एंगल का नाम नहीं लिख रहे, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो 40 डिग्री मतलब AOC, ऐसा करके इसके पहले तुम लोग को लिखना पड़ेगा एंगल AOC, प्लस x क्या है COP, ओके, COP ऐसा करके, प्लस और ये 25 डिग्री ये क्या है ना BOP, ठीक है, BOP, ठीक है, ऐसा करके तुम लोग इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हो, उसके बाद 40 डिग्री, मगर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सब सम्स 1 मार्क का होता है, ठीक है, 3 तो निकालना है, 1 + 1 + 1 3 मार्क्स, ठीक है। तो आ गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 40 डिग्री और 25 डिग्री को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा और इसको करने से 1 आ गया, 115 डिग्री। तो x आंसर हम लोग को मिल गया। अभी तुम लोग देखो, जब में 3 ठो एंगल है, इसको लीनियर पेयर मत करना। लीनियर पेयर मतलब 2 ठो एंगल मिलाकर 180, इधर में तो लीनियर पेयर कभी भी नहीं होगा, इधर में 3 ठो एंगल जोड़कर तुमको 180 मिल रहा है, तब जाके तुमको AOB इज अ स्ट्रेट लाइन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन नाउ अभी हम लोग y निकालेंगे, ठीक है। y कैसे निकालेंगे? अभी देखो अच्छा से, ये 40 डिग्री और y, ठीक है, 40 डिग्री और y, ये दोनों को मिलाकर 40 डिग्री और y, देखा मैंने दिखाया 40 डिग्री और y, ये दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 180 डिग्री, क्योंकि एक तो प्रोटेक्टर जैसा लुक आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं 40 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन वही सेम रीजन लिख सकते हैं, COD और ऊपर में ऐसा एरो मार्क दोनों साइड में इज ए ST लाइन, स्ट्रेट लाइन। और तुम लोग लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, और नहीं तो सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो। अभी y इक्वल टू 180 डिग्री, ये 40 उधर चला जाएगा, माइनस क्या 40, तो कितना आ गया y इक्वल टू 140 डिग्री। तो आ गया हम लोग का y भी, देखो x भी आ गया, y भी आ गया। अभी क्या पड़ा है? अभी z, ठीक है। तो z और 40 डिग्री अगर अच्छा से तुम लोग देखोगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये देखो, ये है 40 डिग्री और ये z है, ठीक है, ये दोनों पूरा वर्टिकली ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि AB और CD O पॉइंट में कट हो रहा है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस OP लाइन, ये लाइन को भूल जाओ। तो AB और CD कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? O में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये 40 डिग्री और ये Z वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ, और एक तो पैराग्राफ, ओके, नाउ Z इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि व्हाट ऑफ एंगल्स इक्वल, ठीक है, शॉर्ट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। सो आ गया हम लोग का Z और Z, ठीक है। अभी हम लोग इसको हेंस सब आंसर्स एक साथ लिखेंगे, x, y और z, ठीक है। तो x कितना आया 115 डिग्री, देन y कितना आया
140 डिग्री, और Z और Z कितना आया 40 डिग्री। ठीक है, तो आ गया हम लोगों का आंसर। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4B you have understood. Now we will come to question number 5. So let us see what they are telling in question number 5. If angle 1 and angle 2 are vertically opposite angles and angle 1 equal to 7x minus 15 and angle 2 equal to 2x plus 55, find the value of x. तुमको वैल्यू ऑफ x निकालना है, मतलब x कितना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या ना, एंगल 1 इक्वल टू 7x माइनस 15 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू व्हाट 2x प्लस 55 डिग्री। ये दोनों दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 2 दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो आई कैन डायरेक्टली राइट बाय द प्रॉब्लम, ओके, व्हाट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वाई, सिंस, और सिंस को ऐसा भी लिखेंगे, सिंस it is given, okay, that angle 1 and angle 2 are vertically opposite angles। ठीक है, since it is given that angle 1 and angle 2 are vertically opposite angles। clear? अभी हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 का जगह में 7x माइनस 15 डिग्री लिखेंगे, इक्वल टू एंगल 2 का जगह में 2x प्लस 55 लिखेंगे, क्योंकि हमको x निकालना है तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। अभी जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो क्या करेंगे, 7x, ये 2x, यू कम दिस साइड, सो प्लस 2x विल बिकम माइनस 2x। ठीक है, इक्वल टू 55 एज इट इज, 55 इज नॉट चेंजिंग। ओके, नाउ व्हाट इज हियर, माइनस 15 डिग्री, ये उधर जाने से प्लस 15 डिग्री। ठीक है, अभी 7x माइनस 2x कितना हो गया, 5x इक्वल टू, ये दोनों ऐड करो, 55 और 15 कितना आ गया, 70 डिग्री। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं ताकि तुमको अच्छा से दिखाई दे। अभी सिर्फ x लिखेंगे, x इक्वल टू 70 डिग्री, क्या नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा। 5 कैसा है, 5 इंटू एक्स। ओके, तो इनटू मल्टीप्लाई विल बिकम, व्हेन इट गोज दैट साइड इट विल बिकम डिवाइड, और डिवाइड मतलब भी डाउन साइड। ठीक है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई मतलब हाँ अप साइड, डिवाइड मतलब डाउन साइड। अभी इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना है 2 पड़ा है, 20 हो गया। सो कितना आएगा, 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू 14 डिग्री, और ये आ गया हम लोग का आंसर। हम लोग को x निकालने के लिए बोला है, x निकल के आ गया, x इक्वल टू 14 डिग्री। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 4A and B. So practice these sums again and again so that if it comes in the exam you can do it, you can solve it correctly as well as quickly. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से और मेरे इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल की तरफ से शुभ विजयार, प्रीति और शुभेच्छा।